Hello everyone. A very good evening to all of you. My name is Ashutosh and again I'm here to teach you about a very interesting topic. So as you remember, in the last class we discussed about the Ohm's law. Today I'm going to tell you one thing which is very important, and definitely in exams questions are going to come related to that particular topic. Numericals can be there also. So we are going to understand that. Basically today we are going to understand about on which factors resistance of a conductor or a wire depends on. जो resistance है किसी wire का, किसी conductor का, वो किन factors पे depend करेगा, on which factors it is going to depend on. Okay, but before that students, I want to ask you that I hope I'm clearly audible and visible to all of you. Quickly let me know through the chat box. The chat is available for you whenever you want to give your responses. जब भी मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको आंसर करना है, you need to take the help of chat box. आपके कोई डाउट्स हैं, आपकी कोई क्वेरीज हैं, उसको भी आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो एंड यू कैन सेंड इट टू मी. बट बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक क्लास, one very important thing I want to tell all of you. As you know, we launched our program, which is Vijay Bhav program. The meaning of this term, to get success, to achieve the success. Right now, if I'm talking about how you can achieve your success, how you can achieve your goals. So if I'm talking about that, you can achieve the success, you can achieve the goals by getting some good marks, right? By getting some good content, right? So the site link is there in the description. First of all, you can see it here also, infinitylearn.com. We are providing you 24/7 the doubt clearance. Means whenever you are having doubt, whenever you are having queries, you can reach out to us. We are going to clear your doubt. We are going to answer your question and we are going to help you in that. Okay. So that is something which is very amazing. Like when I was child, if I had doubts, I need to wait for next day or maybe for the next class. But you are having that opportunity. Whenever you are having doubt, you can come and take help from us. Second thing, the content which we are providing it to you, that is a top quality content, and we are making sure that you are able to understand it in a much better way with our experienced faculty. You know about our faculties, that's why you are here in the YouTube class, right? तो यहाँ पे जो हमारे फैकल्टीज हैं वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करते हैं और आपको उसको समझने में हेल्प करते हैं, राइट? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, नीड टू विजिट दैट साइट. यहां पे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है, योर नेम, योर ग्रेड, एंड आफ्टर दैट व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस कोड आशुतोष20, यू विल गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट देयर. तो बच्चों, वहां पे डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक द क्रैश कोर्स इज अवेलेबल फॉर यू. वहां पे क्रैश कोर्स आपके लिए अवेलेबल है. द बुक कोर्सेज आर अवेलेबल फॉर यू. If you want to take it for the next classes also, that is also there. You can share it with your friends also if they need help. Okay, so I hope you all know my name also. My name is Ashutosh. That's why this coupon code name is Ashutosh20. Now, moving ahead, if I'm talking about resistance, last class में हमने resistance की बात करी थी, तो यहां पे हम resistance को समझ रहे हैं with a water pipe analogy. अगर आप यहां ध्यान से देखो बच्चों, तो the electric current in a conducting wire is analogous to the water flow through a pipe. अगर यहां पे आप थिकनेस को इंक्रीज करो तो वाटर ज्यादा फ्लो होगा. सेम थिंग यू कैन सी हियर. अगर वायर यहां पे कैसा है, उसका थिकनेस कम है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. अगर आप यहां पे देखो थिकनेस इंक्रीज हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो गया, क्योंकि वाटर अब इजिली फ्लो होगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगा, राइट? तो इट्स जस्ट लाइक वी कैन से दैट वाटर पाइप एनालॉजी इज वेरी सिमिलर to get understanding of resistance, how it is providing hindrance in the path of current, कैसे वो करंट के पाथ में रुकावट पैदा करता है, राइट? चल आगे बढ़ते हैं. The water pipe analogy help us to understand the electric circuits better as the diameter of the pipe increases. जैसे आप पाइप का डायमीटर इंक्रीज करोगे बच्चों, आप क्या देखोगे कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा बाहर आ रहा है, राइट? The amount of water flowing through the pipe increases and vice versa. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. जितना ज्यादा थिक होगा पानी उतना ज्यादा बाहर आएगा. सेम करंट, जितना ज्यादा वायर थिक होगा करंट उतनी ज्यादा वहां से फ्लो होगी. दैट मींस लेस रेजिस्टेंस. वायर का साइज जितना कम होगा दैट मींस इट इज मोर रेजिस्टेंस. क्लियर बच्चों? अभी इस चीज को और डिटेल में समझेंगे. इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? वी कैन डिफाइन इट इन अ वेरी सिंपल टर्म. द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, द अपोजिशन टू द इलेक्ट्रिक करंट
थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जो अपोजिशन होता है यहां पे इलेक्ट्रिक करंट का एक कंडक्टर के थ्रू जब वो फ्लो कर रहा है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वी आर कॉलिंग दैट फिनोमिना इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। किस लेटर से डिनोट करते हैं? वी आर डिनोटिंग विद द लेटर आर, राइट। यूनिट क्या होती है इसकी? स्टैंडर्ड ओम। फॉर्मूला भी हमने पहले भी देखा है इसका, एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, सो वी कैन राइट R इज इक्वल टू V बाई आई। ओके, चलिए बच्चों एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिएगा। इफ देयर इज अ गुड कंडक्टर, सो फॉर अ गुड कंडक्टर रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? इफ देयर इट इज अ इंसुलेटर, इसके लिए रेजिस्टेंस कैसा होगा? जल्दी से बताइए। हाउ वी कैन डिफाइन देम इन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बेसिस पे इन दोनों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, गुड कंडक्टर और इंसुलेटर को? जल्दी से बताइए, सोचिए। बहुत सिंपल है। अगर एक गुड कंडक्टर है मतलब, या फिर कंडक्टर भी है, सो द करंट इज फ्लोइंग वेरी इजीली। व्हाट आर द कंडक्टर्स वेयर द करंट कैन फ्लो इन अ इजी मैनर? इंसुलेटर वेयर करंट इज नॉट एबल टू फ्लो। सो अगर करंट इजीली वहां पे फ्लो हो रही है, दैट इज डिनोटिंग इट इज हैविंग लेस रेजिस्टेंस। एंड अगर करंट फ्लो ही नहीं हो रही है, यू कैन अंडरस्टैंड वहां पे कितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो इट इज, insulators are having more resistance, right? चलिए, the electrical resistance of a conductor is measured in ohm। जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का, हम उसको मेजर करते हैं ओम में। ओम इज द स्टैंडर्ड यूनिट। सिंबल क्या होता है ओम का? दिस इज द सिंबल फॉर ओम। ओके, एंड रिमेंबर, मैं हर बार कोई भी क्वांटिटी आपको पढ़ाता हूं, फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाता हूं, मैं हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट मेंशन करता हूं। व्हाई? बिकॉज इफ वी आर कैलकुलेटिंग इट इन अ न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल में हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंशन द यूनिट। ऐसा ना हो कि हमने करंट कैलकुलेट किया और लिख दिया I इज इक्वल टू 5, मार्क्स कट हो जाएंगे वहां पे। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हाफ मार्क डेफिनेटली कट हो जाएगा। आपको एम्पियर वहां पे डेफिनेटली मेंशन करना है। रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो 10, so mention it in ohm. Units are very important. Okay, so that's how you can see the work of resistance to oppose the flow of electrons. If it is opposing the flow of electrons, that means that is providing the hindrance in the path of current. वो current के path में रुकावट पैदा कर रहा है, right? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं किन फैक्टर्स पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, on which factors this resistance is depending on. Okay, so there are the various factors which affects the electrical resistance. Out of them, the very first one is length of the conductor. पहला फैक्टर है length of the conductor. So second है area of cross section, third is temperature, and fourth is the nature of the material. The fourth one is the nature of the material. तो जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इन फैक्टर्स पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और लेंथ ऑफ द वायर। इसको एल की तरह, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल। मींस अगर मैं किसी वायर की या कंडक्टर की लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर मैं इसको डिक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब बच्चों क्या होता है कि अगर मैं एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा हूं, दूसरी डिक्रीज हो रही है, दैट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, द मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर ऑफ कांस्टेंट थिकनेस एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ये जरूर मेंशन करना है, कांस्टेंट थिकनेस, कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करो तो भी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ता है। द मोर इज इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। मूविंग अहेड, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे अभी हमने देखा था, अगर यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो करंट कम फ्लो होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, अच्छा नहीं ध्यान से समझिएगा, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली, हाँ सही कह रहा था, अगर यहां पे एरिया कम है मतलब करंट इजीली फ्लो नहीं होगा, तो रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। कैसे? मैं बार बार कह रहा हूं, एरिया कम है यहां पे तो करंट कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, एरिया कम है तो करंट कम फ्लो हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है।
तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। नाउ मतलब क्या है इसका, एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, सिंपल एज दैट। ठीक है, द मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर ऑफ कांस्टेंट लेंथ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द लेस इट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। तो वायर्स में हमें ध्यान देना है कि क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा हो तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज विद द टेम्परेचर, द नंबर ऑफ कोलिजन। रीजन क्या है, क्यों ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे नंबर ऑफ कोलिजन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाएगा, पासिंग थ्रू द कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस और वो रेजिस्टेंस ज्यादा ऑफर करेगा। ठीक है, तो कोल्ड वायर और वार्म वायर में आप ये कंपैरिजन वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब नेचर ऑफ द मटेरियल, ये रो होता है एक्चुअली। ठीक है, अब मैं आपको समझा देता हूं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था एरिया के। अगर हम इन दो इक्वेशंस को यहां पे कंबाइन करें, इन दो इक्वेशंस को कंबाइन करके हम कह सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हमको रिमूव करना है, तो R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब यहां बचा क्या है पढ़ना, रो, विच इज द रेजिस्टिविटी, एंड रेजिस्टिविटी इज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट होती है। कॉपर वायर यूज कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट होगी, एल्यूमिनियम का वायर यूज कर रहे हो उसके लिए डिफरेंट होगी। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट मटेरियल। Also the opposite of the flow of the electrons through different material is different, that is going to be different. So the electrical resistance for the two conductor is going to be different. तो resistance डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेचर ऑफ द मटेरियल के, और अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज करना चाहते हैं वी नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑल्सो। ओके, सो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ज्यादा वहां पे रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, इसको हम नेक्स्ट वाले क्लास में पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं आज की क्लास में हमने कितना पढ़ा है। आज की क्लास में हमने क्या चीजें डिस्कस करी, तो हमने बेसिकली डिस्कस करा है रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में बच्चों, क्लियर है सारी चीजें। और अगेन मैं बच्चों बता दूं, जिन बच्चों ने लेट यहां पे ज्वाइन किया था, इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर इन्फिनिटी लर्न फैमिली यू नीड टू विजिट दिस साइट। आपको यहां साइट पे जाना है, यू नीड टू फिल ऑल योर इन्फॉर्मेशन देयर। सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां फिल करनी है, अपना ग्रेड, अपना सब्जेक्ट, अपना कोर्स जो आप लेना चाहते हो, एंड वी आर प्रोवाइडिंग सम गुड थिंग्स हियर। 24/7 आपके लिए डाउट, जो भी आपका डाउट होगा हम क्लियर करेंगे जब कभी भी आपका डाउट है। कंटेंट विच वी आर प्रोवाइडिंग इट टू यू, दैट इज अ टॉप क्वालिटी कंटेंट एंड द एक्सपीरियंस फैकल्टी जो आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। तो बच्चों इन सारी चीजों को याद रखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करोगे और सॉरी कोर्स आप यहां पे सारा अपना डिटेल फिल करोगे, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई आशुतोष 20 कोड देयर यू विल गेट 20% डिस्काउंट। ओके, तो वहां पे 20% फ्लैट डिस्काउंट आपके लिए इन कोर्सेज पे अवेलेबल है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से रिलेटेड क्वेश्चंस करने, वापस से रिवाइज करना है, और कोई डाउट होता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। Okay then, fine, bye bye, have a great day.